जय श्री माता जी। सहज योगा सत्र में आपका स्वागत है। 13 मई 2025 सुबह 5:30 बजे मेडिटेशन सहज योगा प्रतिष्ठान पुणे से प्रसारित का पुनर्प्रसारण आपके लिए प्रस्तुत है। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। उपस्थित सहयोगी भाई बहनों का आज के सुबह के सामूहिक ध्यान सत्र में हम स्वागत करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करके सामूहिक बंधन लेंगे। अभी हम ध्यान में बैठने के लिए श्री माता जी से अनुमति मांगेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर आज का ये सामूहिक ध्यान आप हमसे करवा लीजिए। श्री माता जी, हमें ध्यान में बैठने के लिए अनुमति आप हमें प्रदान करें। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र।
अभी हम नाड़ी संतुलन करेंगे। हमारा राइट हैंड भूमि माँ पर रखकर श्री माता से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी ईडा नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। हमारा राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ करेंगे और यहाँ पे श्री माता से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। हमारा लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ, हमारा संपूर्ण चित्त मध्य नाड़ी पर लाएंगे और यहाँ पे श्री माता से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। धीरे धीरे हमारा संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर लाएंगे। फिर स्वादिष्टान चक्र पर,
स्वादिष्टान चक्र से नाभि चक्र पर, नाभि चक्र से अनाहत चक्र पर, अनाहत चक्र से हमारा संपूर्ण चित्त विशुद्धि चक्र पर लाएंगे। विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र से हमारा संपूर्ण चित्त सहस्रार पर लाएंगे। और हमारा राइट हैंड सहस्रार पर रखकर थोड़ा हल्का सा दबाकर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर आज के ध्यान में हमें निर्विचारिता प्रदान करें। राइट हैंड श्री माता जी की तरफ। इसी अवस्था में हम थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे।
इसी अवस्था में बैठकर हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। आज की अमृतवाणी है 1988 श्री आदि शक्ति पूजा राहुरी। Puja has to start at the time when it has to start. I've been waiting and waiting and waiting. Then I realized that today is a very good time according to the calendar, but it is not in the morning. So it had to be the third day of the moon. And as the moon is changing its phases in the daytime, we had to wait till it started. I think all these things have happened, of the theft and everything has happened, perhaps to delay the puja up to the point where it should start. So in Sajaga we all go beyond time. And we don't have to worry about the timing. Only when it's a formal function or something, because the people are formal, they don't understand our styles. So we have to be present there at right time. Otherwise, we should just allow the time to take its own course and we should move in our own way. Now for our travel and this tour, we have to realize that we are here to achieve a certain amount of height in our detachment. We have to rise into the realm of our state. While the circumstances around us, they are surrounding us, and they should not make us unhappy or biased, or we should not react to them. On the contrary, we should try to rise above that. If there are no events of mishaps, then you cannot see the surmounting quality of the divine. If the surmounting quality of the divine has to be seen, we have to see the obstructions. For example, if there is the flow of the water going on and it is smoothly moving, there is no happening, as we call the ghatana. There is no happening. But if there is a stone, then the water splashes against it, creates a beauty and surpasses it. This is the sign of divine surmounting all the difficulties that are supposed to be there. Now we are proceeding to Pune, and where we will be having a proper session also for marriages and all that. We'll have to take a firm decision. I must speak about it today, that the steadiness of the mind is very important for the marriages. If you have certain concepts, and if you are whimsical, it's better you don't get married. Because that's not found in Indian character. Once they decide for marriage, they are married forever. But if the mind is still wavering, going up and down, it's a trick of the mind that wants to play tricks with others and enjoys it. It's a sign of ego.
absolutely a sign of ego. And then you start playing games. You enjoy it. Yes, no, yes, no. You go on enjoying those games. And later on you play into it so much that your marriages can never be happy or successful. That means you are not yet matured for marriage. For marriage, you have to be matured. But one of the reasons for this I find in the West is that we have had no training at all. Parents have never told you how to behave towards your husband, towards your wife, how to make a marriage successful, that it's a very important event, and that we should try to establish ourselves in the marriage system. Instead of that, we use it as a nice trick playing ground. We miss the point. Who is the loser? If you go on playing tricks like this and playing with your ego, whatever you may do, whatever type of marriages you'll have, you can never be happy. Now in the West, as you know, I lead another life also. And every person I've met, every person, whatever country they may come, nobody seems to be happy in their marriage. It's very surprising. It seems every wife finds something wrong with the husband finds something wrong with the wife. And they have funny, miserable faces. They don't look like married people, but as if like criminals. Or something has really gone wrong with them. There's no smile on their face. They look horrid because they have missed the point. Marriage is to be enjoyed, is for your enjoyment. Supposing one gives you the Amrut as they call it, and then you start playing trick with it. Who is the loser? So must know that we have to achieve that maturity and enjoy that love. Basically, if something is very wrong, or if there's no possibility of a proper marriage, in Sahaja Yoga we have arrangement to give it up. You can change your wife, change your husband, no problem. But there must be some reason behind it. Just for fun's sake, if you want to spoil your life, I'll try my level best to tell you that don't spoil your life and of the other person. But people enjoy sometimes spoiling somebody's lives when it comes to the ego part. They themselves cannot enjoy dog in the manger policy. Dog in the manger cannot eat the grass, but barks at any bull that comes to eat it. It's like this. Neither they will enjoy, nor they will allow others to enjoy. And when such stupid couples are there, I have such a headache all the time, reconciling them, talking to them, asking them. I mean, it becomes a marriage bureau for me. And sometimes I reach such a conclusion, no more marriages in Sahaja Yoga. I had enough of it. Actually, what have I to gain out of it? This is nobody who tries to understand. What I am trying is to make you happy, to get you good husbands and good wives, that you should have good relationships, you should have great people on this earth to be born, that we should have a society which is beyond all these nonsensical societies, which is so great that we can create a homogeneous family among ourselves of purity and of holiness. Instead of that, for petty nonsensical things, if there's a fight going on, one gets really fed up. Of course, one has to try. But if you are bent upon cutting your noses, how can I go on clipping them back? It's an eternal problem. If you marry, say, 75 people, you have the enjoyment of it. Now, if it's a ocean of Indian Ocean, say for example, but then you get the Pacific Ocean back on your head.
with all the cries and weeping and shouting and screaming and all sorts of nonsense that's going on. So I again say that now we are going to Pune, where all the marriages are going to be confirmed. If you go on like this, there's no end to it. Also, those people who come for marriages and deny twice, third time I don't ask them, because it's a joke going on there. You do not know how many nights I have spent selecting people. As it is, you are from 25, 30 countries. Yesterday you saw that. You have different conditionings, different styles, different everything. Heights different, ages different, faces different, aptitudes different. So combine all these things, so very difficult. Sometimes I think if you are overeducated, then better to give you a simple woman so that your little pressure is reduced. You can share with her. But if you have equally educated people, then both the heads may be so I have to think of many things and of vibrations. But somehow or other you can defy. And you try to defy it. All right, doesn't matter. But who is the loser is the point. Today I had to speak to you about this because in Sahaj we have to take the way it comes as it comes. Whatever comes in our way, we should take it. We should not sort of say, I have fallen in love. There's nobody falls in love. It rises in love in Sahaj. That is some funny idea, that one must fall in love. Because, you see, that means you must do something sinful or something absurd. So many people have told me, Mother, I'm not fallen in love with her. Now, how can you fall in love? You fall into some ditch, or you may fall into some river or something like that. I didn't understand how do you fall in love. It's a solid stuff. So this absurd idea of falling in love has to be given up. If it means that you have felt the love, or if it means that you have the sensitivity of feeling the love, or something I can understand, I mean, little explanatory. But this falling in love business has been going on and on and on. Now, I would request you that in Sahaja Yoga we cancel this terminology. So, problems of marriages should not arise in Sahaja. You got chance for 1 month to decide for yourself and to find out for yourself. Little bit adjustments and understanding can create such a beautiful world for you. It's just waiting there. But suddenly you decide on some spot, suddenly you're all right, I find. At the spur of the moment I find, suddenly, no. I say, what's this? The horse was going all right. Suddenly what has happened? It has turned round. One can understand a horse, but I can't understand human beings. So this whimsical behavior suddenly can be very injurious to the growth of Sahaja. Whenever I go to England, there's a list of people from all over the country. This marriage has gone rotten, that has gone rotten, that has gone rotten. While I'm boasting to everyone that Sahaja Yoga marriages never fail, I know it's not true. But whatever I say is a mantra, ultimately it becomes the truth. So as time will come when no marriages will fail. But you have to join hands with me and cooperate and should understand how much I've worked hard to bring about these events.
And marriages should not make you happy or unhappy, because to marry is not the ultimate in life. But it happens after marriage, people get lost. They don't come to Sahaja Yoga. After that, we are enjoying our honeymoon for the last 3 years. Oh, wonderful Sahaja Yogis who are leaders suddenly get lost. That also maybe a fall in love, maybe, I don't know. But this kind of nonsense, even if it is 1 or 2, it's such a headache. And I really don't know how to solve these problems, because I think there's no problem at all. Only thing, you have decided not to enjoy anything. Supposing you don't want to enjoy the food, you can put some quinine on your tongue and then say, I don't like the food. Something like that. It's absurd. So try to help me in this. Otherwise, I'll give up this marriage business. I tell you. Because it doesn't give me any joy or pleasure. Even one person feels like that, I just don't understand. And for no rhyme and reason, you should not say no. First of all, you must look at yourself in the mirror. What are you? What is your education? What is your intellect? What do you expect from another person? How much money you have got? How much money the other person has got? Whatever you want to see, you can see for yourself. To begin with. Then compare. But the greatest thing, you have to think about how many vibrations you have. How much Sahaja Yoga the other one knows. You are marrying for your ascent. If the other person has vibrations much more than yours, then you should not unnecessarily boast of nonsensical, gross things. The person is much subtler. Make use of that. Whether it's a woman or a man, I don't say. But I just say that see for yourself, where are you? Especially for beginners who are beginning to take to Sahaja Yoga. It's better to marry some matured Sahaja Yogi so that they can ascend very well, much faster. And also, if the other party is not so good, maybe we have to work. We have to save that person. After all, they are not yet matured, but they are Sahaja Yogis. They want to do. So try to work it out in that way. I think you will understand the seriousness. This is the most important work that ever happened on this earth so far. Your marriages are very important, and you have seen the photographs where the gods themselves have blessed you. Because of my consent, because of my selection, they all were present in your marriage, and how they were giving you tributes and how they were. सब मंत्र को ही बोले होंगे, पहले होता था, अभी विशेष नहीं। वही तो है ना। अब देखिए, आप मंत्र बोलते थे, आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा है। विशुद्धि चक्र से आपके, अभी आप दिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये 2 नसें यहाँ से चलती, विशुद्धि चक्र में ही ये विशेषता है, और किसी चक्र में नहीं। ये दोनों नसें यहाँ से चलती हैं, नाड़ियाँ ही हैं 2। इसीलिए जब आप मेरे और हाथ करते तो हाथ से जाता है, हाथ में ही 2 नाड़ियाँ, तो ये नाड़ियाँ गायब हो गई। आपको जिस आदमी ने आपका विशुद्धि चक्र अगर पकड़ा होगा तो आपको फील ही नहीं होगा हाथ में। बहुत लोगों की ये हो जाती है गति कि वो बहुत पहुंच जाते हैं, उनको अंदर से सब महसूस भी होता है, शरीर में महसूस होता है, हाथ में महसूस नहीं होता। अंदर महसूस होता है, यहाँ है अभी कुंडलिनी, यहाँ है, सर में है, ये सब महसूस होगा, पर हाथ में होता ही नहीं। मतलब वो ज्ञान शांति जब होती है तब क्या मालूम, कैसे मालूम होगा कुंडलिनी कहाँ पर है? आप जब दूसरों पे हाथ करेंगे ना, तो आपको खुद ही अंदर पता चल जाएगा, आपको अपने में भी पता चल जाएगा। अभी वो किस तरह से उसको एस्टैब्लिश करना है वो मैं पहले बता दूँ। उसको कोई बहुत ज़्यादा जाना नहीं होता है, अंदर से ही जाना जाता है। जैसे आपको कैसे मालूम कि ये चीज़ गर्म है कि ठंडी है? बोलिए। ये तो आपके अंदर मालूम ही है, ये आपकी चेतना में है ना। इसी प्रकार कुंडलिनी का ज्ञान भी आपकी चेतना में आ जाता है। आप कहते हैं देखो माँ यहाँ है कुंडलिनी। छोटे छोटे बच्चे जब बाहर हो जाते हैं तो वो तक बताते हैं माँ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है।
महसूस होता है। ऐसे हमारे पास बहुत से लोग हैं जो सर्वसाधारण लोग हैं, सर्वसाधारण लोग में ही सहयोग होने वाला है। ये बहुत ज्यादा जो रईस लोग हैं, देखा नहीं तुमको, 5 मिनट इधर है पार हुए हैं, उनके माँ को ठीक कर दिया, बाप को ठीक कर दिया, फलाना ठीक कर दिया, 5 मिनट बैठेंगे फिर चले, उनको टाइम नहीं। प्रोग्राम में कभी नहीं आएंगे, पूरा साल नहीं आएंगे। उसके बाद में जब मैं आऊंगी, माँ इधर पकड़ गया, इधर पकड़ गया, इधर पकड़ गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, और पूरा साल कभी प्रोग्राम में नहीं आएंगे। ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। जैसे एक हफ्ते में एक बार अपने लिए टाइम निकाल करके जैसे हम इबादत करते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं चर्च में जाएंगे, वो सिद्धि विनायक में जाके घंटों मंगलवार को खड़े रहेंगे, ऐसे ही अपने लिए एक दिन जरूर आपको हफ्ते में निकालना चाहिए और उसका पता लगाना चाहिए कहाँ पर क्या है, क्या कौन सी कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ जाओ, जहाँ सब लोग मिल करके हमें याद करेंगे वहीं हम आएंगे। अकेला बैठने से नहीं कि मैं घर में बैठ के करूँ, फिर ये तकलीफ हो गई, फिर ये प्रॉब्लम हो गया हमको। जो लोग वहाँ जाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, सब प्रॉब्लम हल होते। प्रॉब्लम होते हैं इसीलिए तो वहाँ जाने का है, क्योंकि वो जगह प्रॉब्लम सॉल्व करने की है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वहाँ जा करके वो प्रॉब्लम बोल दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप गए ही नहीं जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो उसका मैं इलाज कैसे करूँ? समझ लीजिए, इनकम टैक्स में जाकर के इनकम टैक्स का समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो आप घर में बैठ के कैसे कर रहे हैं? सो प्रोग्राम में आते ही नहीं लोग। एक दिन क्या मुश्किल है अपने लिए निकालने के लिए? फिर मेरे पास इतनी लंबी लंबी चिट्ठी आती है, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, हमारे पति को ये बीमारी हो गई, हमको ये बीमारी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। श्रीवास्तव को पूछो, इसका ऐसा ही था, अभी ठीक है जरा। इसलिए प्रोग्राम में जाना चाहिए अपने को। एक दिन वहां जाने से आप मेरे पे कोई उपकार नहीं कर रहे, अपने पे जा रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अभी कोई परमानेंट जगह हुई नहीं है, लेकिन जहाँ भी होती है, हमको तो एक टेरेस मिला था, उसी पे करते थे। अब वो गवर्नमेंट कह रही कि उसको तोड़ डालने का, चलो भाई दूसरा टेरेस मिल जाएगा, उस पे करेंगे, जहाँ भी मिल जाए। अभी तक जगह नहीं हुई है सहयोग की पक्की, हो जाएगी वो भी। मैंने कल बताया ना कि होती नहीं है, क्योंकि कोई हमको ब्लैक मनी नहीं देने का, पैसे हम देंगे लेकिन ब्लैक मनी नहीं देंगे, इसलिए प्रॉब्लम है। हो जाएगा, लेकिन आप लोग तो वहां जाया करो, जहां आप जाएंगे वहां मेरा चित्त रहेगा। इसमें अहंकार बड़ा नुकसान करता है, सबसे बड़ा अहंकार और आलसीपना। एक तो या तो आलसीपना होगा या अहंकार है। जिसको अहंकार है कि अरे क्या जाने का, उसको यहाँ आने पे मेरे लिए सरदर्द हो जाता है। जब मैं लंदन से आती देखती हूँ सब लोग की हालत खराब। अभी भी सब लोग यही कहते हैं, जो लोग हमेशा जाते हैं, कि माँ पूरा साल ये लोग नहीं आएंगे, और अंत में जैसे तुम पहुंच जाओगे तो ये खराबी है, वो खराबी है, लेके बैठ जाएंगे। घर में ध्यान वान करने से इतना नहीं फायदा होने वाला जितना सामूहिक है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी क्यों सामूहिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, अभी भी मेरा फोटोग्राफ ले लेना यहाँ से। आज आए का मिळणार है फोटो? आए ना? भरपूर है। अभी ये फोटोग्राफ सब लोग ले ले, क्योंकि फिर मिलते नहीं है। कितने आयत भरपूर? हाँ है। सब लोग एक एक फोटोग्राफ ले करके उसको कायदे से मढ़ के घर में रखना चाहिए। कायदे की जगह रखो, ये नहीं इधर रख गया उधर रख दिया, इससे नाराज हो जाते हैं। फोटो के अंदर में देवता लोग हैं, अभी बताती हूँ कौन से देवता है। सारे देवता है, और फोटो से भी वाइब्रेशंस आते हैं। तो आप इधर उधर फोटो को रखेंगे तो अच्छा नहीं, उसका अपना प्रोटोकॉल है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। किसी भी मूर्ति से ज्यादा फोटो महत्वपूर्ण है, इसलिए कि अभी तक किसी भी इनकार्नेशन का या अवतरण का आज तक तो फोटो हुआ नहीं है ना, उसमें कुछ ना कुछ दोष आ ही गया है। इसलिए फोटो को बहुत संभाल के रखना है। और उसके अलावा उसकी, जैसे आप हिंदू हो मुसलमान हो जैसे भी हो, उसका थोड़ा पूजा अर्चन करना चाहिए, उसके आगे हाथ रखना चाहिए। जब उससे पूरा हम काम ले रहे हैं, फोटो से हम अपना कैंसर भी ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। और फोटो को है कि कोई एक बार पोछेगा भी नहीं, उसमें धूल पड़ी हुई, तो ये कौन सा तरीका है भाई? जिस बैंक से सारा पैसा लेने का है उसका कुछ तो ख्याल करना चाहिए, नहीं तो छोड़ दो फिर बात को।
नहीं करना तो मत करो, लेकिन करना है उसको समझदारी से। आप हिंदुस्तानी आदमी है, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ किस तरह से हम हर एक चीज का व्यवहार करते हैं, कैसे हर एक चीज की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर अंग्रेज हो तो मेरी समझ में भी आवे, और उन पे इतने देवता लोग नाराज नहीं होते। मैंने देखा अंग्रेज लोगों पे, उनको तो अक्ल ही नहीं इस चीज की। मेरे तरफ पैर भी ऐसा करके बैठे तो भी नहीं नाराज होते, मैंने देखा है। देवता लोग खूब सोचते हैं, पर हिंदुस्तानी बैठ जाए तो फटाक से आता है पैर पे। तो इसलिए समझ के फोटो को रख लिया। फोटो के आगे दोनों हाथ रखने से वाइब्रेशन आने लगती है। और ये जो हमारे अंदर जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, जिसके कारण हमारे वाइब्रेशन रुकते हैं, ये पंचमहात तत्व से आते हैं, पंच तत्वों में से आते हैं। पंच तत्व माने आप तो जानते हैं ना, पृथ्वी तत्व है, तेज है, आप है आदि। अच्छा, अभी जो कुछ में आप में बाधा है वो उसी तत्व में विलीन हो जाता है। तो आप अगर पानी का तत्व लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी का तत्व में थोड़ा नमक डाल दिया तो जैसे आपने समुद्र को ही अपना लिया है। समुद्र जो है गुरु स्वरूप होता है, और उसको नमस्कार करके और उसमें दोनों पैर डाल के और दोनों हाथ ऐसे करने से आपको आश्चर्य होगा, वो सारा का सारा खींच लेगा। फोटो सामने एक दीप जलाइए, दीप से आपका प्रकाश है, माने तेज तत्व है। तेज तत्व जो है उसको खींच लेता है। अग्नि से भी होता है, हर एक चीज से होता है। इसके अनेक उपाय हम लोगों ने सहयोग में पता निकाले हैं कि किस तरह से इसको, जो कुछ भी हमारे में जड़ता आ गई है, जो इम्बैलेंसेस आ गए हैं, जो संतुलन आ गया है हमारे पंच तत्वों में, उसको किस तरह संतुलन में लाना। जैसे संतुलन आ जाता है वैसे ही हमारी सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। बहुत सीधा हिसाब है। आपके यहाँ फोटोग्राफ है, उसको आप रखिए, दोनों हाथ उसके ओर करें। जब तक उसमें से आपको ठंडी हवा नहीं आती कोई संतोष नहीं है। आप जब आपके अंदर ठंडी हवा आने लग जाए धीरे धीरे, तब सोचना चाहिए कि हाँ भाई अभी मैं ठीक। ऐसा पड़ताला लेना चाहिए। समझ लीजिए आपको वाइब्रेशन नहीं आ रहे तो देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी आपके हाथ में चमक आएगी, ये उंगली चमक रही है कि ये उंगली चमक रही है कि ये उंगली चमक रही है। इन उंगलियों से आपको पता हो जाएगा। अगर आपने किताब ली हो तो इस पे चक्र होते हैं, उसे पता होगा कौन सा चक्र आपका पकड़ा है। उस देवता का आपको नाम लेना पड़ेगा, और वाइब्रेशंस जो है फिर से लेने से, उसका नाम लेने से आपको आश्चर्य होगा कि वो खुल गया, वो उंगली खुल गई, वो और सारे वाइब्रेशंस आना शुरू। इस तरह से इसकी पूरी स्टडी होनी चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए पार होने के बाद। लेकिन अगर आप प्रोग्राम ही में नहीं आएंगे तो कैसे होगा? दो चीज, एक तो आप हमेशा एक दिन रखिए। पार्टी में जाने को टाइम है, दोस्तों के यहाँ जाने को टाइम है, घूमने को टाइम है, सिनेमा को टाइम है, सब चीज को टाइम है। अपने लिए एक दिन भी नहीं। फिर माता जी के लिए भी तो सरदर्द होता है। जब आती वहां से लौट के तो देखते अरे बाप रे ये बम्बई वाले, तो भगवान बचा। पर अभी मैं जाऊंगी राहुरी में, देखो विलेज में सब लोग सवेरे 4 बजे उठ करके रोज नियमित ध्यान करते हैं। और वो लोग रोज शाम को सहयोग सेंटर में मिलते हैं। बोलते हैं कि अभी अपन शराब के गुत्ते में तो जाने का नहीं, क्या मजा आता है आपस में। असली दोस्ती तो ये सहयोगियों की होती है। और किसकी दोस्ती हुई? असली दोस्ती होती, जान पे जान लोग दे देते हैं। बड़ा मजा आता है आपस में। जब सभी लोग पार हो गए तो फिर वो बात ही और चलती है। फिर किसी का अच्छा नहीं लगता, लगता है ये क्या छोटे बच्चों जैसे मूर्खों जैसे बातें करते हैं। ये क्या करना है, इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से करना है, इसलिए किताब भी है, उसको भी आप ले लीजिए, देखिए। और उसमें से कुछ नहीं समझ आए तो प्रोग्राम में आना, वहां लोग रहते हैं, उनसे पूछिए। काफी लोग हैं पार हुए। आपकी कुछ प्रगति हो जाएगी जब आप कुछ स्थिर हो जाएंगे, तब आपको और भी चीजों में एक्सपोज किया जाएगा, इससे और भी स्थिरता बनती जाएगी। लेकिन अगर आप डगमग है, अभी आपको श्रद्धा है और श्रद्धा रहेगी तो कोई नहीं कुछ बताने वाला। पर फिर उसके बाद में और भी इसके हायर स्टेट्स हैं, उसमें आप उतर सकते हैं। जैसे पूजा क्या चीज है ये वगैरह। फिर पूजा में सब लोग नहीं आते क्योंकि हम सबको बुलाते नहीं है। वो दशा नहीं है ना, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बगैर कुछ नहीं होने वाला। अभी जब तक पार नहीं हुआ है तब तक भगवान माफ कर देता है।
पार होने के बाद भी हाथ से वाइब्रेशन आए तो भी, 4 आदमी आपके हाथ से पार हुए तो भी, और आपकी बीमारी ठीक हो गई तो भी आपको श्रद्धा ही नहीं। हाँ, तो फिर भगवान क्या कहता है? ऐसे अश्रद्धा लोगों को भगवान क्या देगा? आपको परमात्मा को कुछ नहीं देने का, पैसा ऐसा तो आप दे नहीं सकते ना, कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ श्रद्धा तो देना चाहिए। श्रद्धा का मतलब है अनुभव के बाद विश्वास रखना, अंधविश्वास नहीं। लेकिन जब आपने देख भी लिया, सब जान भी लिया, उसके बाद भी आपने विश्वास करते हैं, तो फिर परमात्मा को आपकी परवाह नहीं। सब जानने के बाद, देखने के बाद, सब होने के बाद भी लोग ऐसा करते हैं। उसी से फिर रावण तैयार हुए। रावण कैसे तैयार हुए? रावण तो पार हो गया था, ब्राह्मण था, और पार होने के बाद भी उसने फिर अश्रद्धा करी, अश्रद्धा करके गलत काम शुरू कर दिए, फिर उसका देखिए क्या हाल होगा। अभी श्रद्धा का मतलब भी क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि माँ हमसे सब होता है, हम सरेंडर नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं सरेंडर कर सकते? तुम्हारा क्या हम ले रहे हैं? क्या है आपके पास देने के लिए जो हम ले रहे हैं, जो सरेंडर नहीं कर रहे हो? बताओ तो सही। तुम्हारा अहंकार ही तो है ना। थोड़ी कह रहे कि तुम्हारा विजडम सरेंडर करो, हम तो तुमको विजडम दे रहे हैं। अगर अहंकार नहीं सरेंडर करोगे तो तुम्हारे अंदर विजडम नहीं आएगा, बेवकूफ बन जाओगे। तुम्हारे अंदर विजडम नहीं आएगा, बेवकूफ बन जाओगे, स्टूपिड। यही तो पाश्चिमात्य देशों में हुआ कि अहंकार पे ही स्थित है वो लोग, ईगो ओरिएंटेड है, तो स्टूपिड हो गए। अपने यहाँ दिखाया था नारद जी का बड़ा अच्छा वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। एक बार वो बहुत अहंकार करके गए थे, तो मायापुरी में जाकर उनका सारा अहंकार टूट गया, लेकिन वो बड़े बेवकूफ बन गए थे। जिस आदमी में अहंकार होता है वो बड़ा ही बेवकूफ होता है। उस अहंकार को अच्छा ही है कि समर्पित कर दे। अहंकारी मनुष्य महामूर्ख ही होता है, लोग सब हंसते हैं उस पर, उसको नहीं समझ में आता है। ऊपर से भी जो नम्रता बहुत लोग लाद लेते हैं, बिजनेस वाले हुए, सरकारी नौकर हुए, ऊपर से बहुत अच्छे से बात करते हैं, कोई असली नम्रता नहीं। असली नम्रता तो सिर्फ विजडम से आती है, सुबुद्धि से आती है। तो सुबुद्धि का जागरण होने से ही, सुबुद्धि के आशीर्वाद से ही मनुष्य उस जगह स्थित होता है जहां वो है। ये तो मैंने बता दिया कि आपके वाइब्रेशंस अगर खो जाएं तो क्या करना